Okay, division. Division. Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts now. Clause 53. Yes, result of the division. Subject to correction. Ayes 84, noes 50. Amendment number 10 is adopted. I shall now put clause number 53 with amendment recommended to vote. Those in favor, please say aye. Aye. Those against, please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause number 53 with amendment recommended is adopted. Clauses 54 and 55 stand part of the bill. Those in favor, please say aye. Aye. Those against, please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 54 and 55 are adopted. Clause 56 stand part of the bill. There are two amendments, numbers 2 and 3 by Dr. T. Subbarama Reddy. Are you moving? Sir, I have given these two amendments which are similar in nature. The date of making Aadhaar card compulsory instead of from 1st July 2017, I am proposing from 1st December 2017. The idea is income tax assessees should be given sufficient time for linking their Aadhaar card while filing the returns. Even the Supreme Court has said it should not be made mandatory. However, you are making it. You are now making compulsory for financial year 2016, Okay. 17. So, I am moving it now. You are moving? Of course. You are a changed man now? I am moving. Yeah. See, you are learning from Digvijay Singh ji. Now, Sri, yes, amendment moved, both two, amendment number 2 and 3. Yes, amendments moved. Those in favor, please aye. Those against, please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it, the amendments are negative. Sir, I want to do अरे यार बैठो छोड़ो यार कोई नहीं करेगा Why? वोट कोई नहीं करेगा बैठो What is the need? Yes. Okay. So, amendments are negatived. I shall now put clause 56 to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 56 is adopted. Clauses 57 to 153 stand part of the bill. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 57 to 153 are adopted. Clause 154 stand part of the bill. There are two amendments, numbers 11 and 12 by Sri Sitaram Yechury. Removing? Moving the amendment, sir. And the reason is, I've explained when I was speaking as well, that I think by these provisions in the finance bill, the amendments to the Companies Act, it actually opens the floodgates for political corruption of the highest orders. There is been no restriction on the amount of money companies can pay to political parties. Neither do we know which are the political parties that are beneficiaries of these donations. And this will lead the way for very large number of Benami shell companies to be set up, where that can be used to launder money, and black money can be converted into white and go in as legal donations to the political parties. This will be opening up the floodgates for political corruption as hitherto unknown in our country. Already we are facing the menace of the role of money power in distorting our democratic processes in our elections. Now, if you allow this, I think this process will going to multiply exponentially, and that will destroy the democratic choices before the people. So you are moving therefore, both. I am moving the amendment. Both amendments. Both of them. Yes, amendments moved. Those in favor, please say aye. Aye. Those against, please say no.
I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. Division. Division, eh? Okay. All right, division. Now, lobbies are already clear. Eh? Taking the division both together. No, how do you want? Yeah, both together. Both together. Okay, all right, no problem. I am always go by what you say. I always, I am going by what the members say. I'm always grateful, sir. Both together, I accept it. I want the whole of the country to be together, sir. Yes, that's correct. that is one. No, so lobbies are already clear. Additional Secretary has already explained, no need of explanation. Therefore, I shall now put amendments number 11 and 12, moved by Sri Sitaram Yechuri to vote. Those in favor, please say aye. Aye. Those against, please say no. No. I think the noes have it. Okay, division. Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts now. Yeah. Result of the division, subject to correction, ayes 80, noes 53. Amendment number 11 and 12 are adopted. Now, I shall now put clause number 154. To the EVMs, but no complaint about this machine. Okay. I shall now put clause number 154 with the amendments recommended to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause number 154 with amendments recommended is adopted. Clauses 154 to 189 stand part of the bill. So 155 to 189 stand part of the bill. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 155 to 189 are adopted. First schedule stand part of the bill. There are 4 amendments, numbers 4 to 7 by Dr. T. Subbarama Reddy. That is amendment to first schedule. No, first amendment 4, sir. Amendment 4, my amendment to the first schedule regarding Are you moving? No, before my decision I must tell. No, before my decision I must like All to say. right. Regarding the rates of income tax, for individual assessees, we have put 20% tax for income exceeding 5 lakhs. I am proposing that rate to be fixed at 15% for individual assessees. I want Honorable Finance Minister to bear in mind, I am not moving this. No, you are not moving all 4 to 7. One. No, 4 to 7. Fourth amendment. You, 5, 6, 7, I would like to. listen here, you have got 4 amendments, 4, 5, 6, 7. I will tell individually. 5, No, 6. say together, no time for that, say together. Okay, then fifth amendment. Fifth amendment is for individual assessees where the total income exceeds 10 lakhs. Government is to levy 30%. Though my amendment, through amendment, I am proposing to lower the rate to 20%. Then next amendment, this amendment is for the benefit of senior citizens. This government says if income exceeds 5 lakhs, he has to pay 20%. Through my amendment, I am suggesting that it should be 15% for senior citizens whom we all respect. Then amendment 7. This is for senior citizens category where their income exceeds 10 lakhs. Government wants to levy tax on 30%. So I am proposing that it should be at least 20%. So NDA government claims to be welfare-oriented government. Then why don't you give more concession for senior citizens? Okay. So I am moving this. So you are not moving. All are good suggestion. No, I am moving all. Moving all. All. Okay. Amendments are moved. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. Amendments are negative. I shall now put the first schedule to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The first schedule is adopted. The second schedule
to ninth schedule stand part of the bill. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The second schedule to ninth schedule are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting... Here in line schedule, I want to bring it to the Honorable Finance Minister's notice. It should not read section 180, it should read section 185. It's a typographical error. Okay, fine. Now, clause 1, the enacting formula and title stand part of the bill. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Now, Sri Arun Jaitley to move that the bill with amendments Sir, be I rise to recommend- move that the bill with amendments be returned. recommended be returned. Yes. Motion moved that the bill with amendments recommended be returned. Question is that the bill with the amendments recommended be returned. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill with amendments recommended is returned. Okay, lobbies may be cleared. Appropriation railway, yes. Railway appropriation, what is the position? दे दो, bear list दे दो. Railway appropriation. वो इतने आदमी है इतने लोग और बहुत ने अरे क्या है only two are spoken सर वो कौन unfinished सर मिस्टर भूटानिया फ्रॉम द कांग्रेस आई थिंक okay all right Aadhar yeah I'll tell you about Aadhar yes now please either no honorable member don't stand on the passage and talk either you be seated there in the house or please go out either please be seated in the house or go out don't stand like this I am coming to you yes I am coming to you Aadhar see in the morning meeting leaders meeting it was suggested that we will take up railway appropriation now and after disposing of it we will take up Aadhar that is tomorrow Mr. Minister tomorrow maybe yeah government also agrees so no problem Fine, sir. If you are assuring that the discussion will be tomorrow, it's yeah fine. we can no problem after disposing of the railway we can take the railway you have got another 3 hours Continue tomorrow also. Then what will happen? To Aadhar? no Then Friday is private members bill. we will sit late do one thing today also sit 1 hour more today no my suggestion is no listen you need not sit if you don't want why do you say like this my suggestion is we sit today up to 7 p.m. so that 1.5 hours will be over tomorrow 2 hours tomorrow at 4 then we can take up Aadhar provided you agree to sit सर 1 मिनट सर जयराम रमेश जी का जो आधार है वो आधार पे हम डिस्कशन होना चाहिए हम इसके पक्ष में हैं लेकिन जो है वो टाइम आप सर फिक्स करेंगे no उसके पहले रेलवे खत्म होना है don't worry रेलवे है और एक बिल है उसके बाद आधार होगा no सर वन लेजिस्लेटिव बिजनेस सर फ्रॉम लास्ट 3 days that we can do फ्रॉम लास्ट 3 days नो लेजिस्लेटिव बिजनेस वन SC/ST That is- सर वेरी इंपॉर्टेंट सर That you did not say in the morning meeting. फ्रॉम लास्ट 3 days in our house You did not say it in the meeting. SC/ST नहीं, that is बिल्कुल नहीं, why Okay. we are going बिल्कुल to नहीं। bring SC/ST you did not mention it in Yes. the morning sir we can, No no bill, yes, sir. bill. No, sir. Sir. no SCS listen no acha Taban ji बेटा no Mr. Minister Naqvi ji
we will take up SCST also, but as per morning decision, we will go. Morning decision is the railways, after disposing of railway, Aadhaar. That is the decision, we will go by that. Therefore, today, we will sit up to 7 p.m. एक मिनट Yeah, I told you already. सर उसमें डिसीजन ये भी था कि हम जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन भी लेंगे, लेकिन एक बिल भी, एक या दो बिल भी करेंगे ये तो जो एक ही अभी करना है, बैठिए। Yeah, you can. कल निकल एक 3 दिन से नकवी एक जी, दिन हो रहा है सर, नकवी जी, क्यों नौकरी नकवी जी, कल मीटिंग में you can raise the matter there. Sir, Now, please, now, over. sir, I have no problem with the bill being taken up, provided you assure us that Aadhaar will be Yes. taken up after the railways. Now, that is what I already said. Why do you ask again and again? I said that. Now, Sri Narendra Budania to continue the speech. So today, we will sit up to 7 p.m. Not 7 p.m., sir. Yeah, that is already decided. 7 p.m. Then only we can finish. Only if you sit up to 7 p.m. tomorrow you can take up Aadhaar. What is the problem? Come. उपाध्यक्ष जी, Yeah. आभार तो मैंने पहले भी आपका प्रकट कर दिया था, लेकिन पुनः मुझे आपने बोलने का मौका दिया है। उपाध्यक्ष जी, सर रेलवे मिनिस्टर तो नहीं सर मिनिस्टर को बुलाइए, ये इतना इंपॉर्टेंट विषय है। दिस इज नॉट वे, नहीं दिस इज नॉट वे। सर कैबिनेट मिनिस्टर को बुलाइए। सर रेलवे इतना महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, कैबिनेट मिनिस्टर को बुलाइए। सर कैबिनेट मिनिस्टर को बुलाइए। सर रेलवे का बजट है, रेलवे पे सर MOS is here, that is enough. The railway minister should be here. railway is taking note. Either the railway minister or the railway finance is already minister. taking He will the come, he will note. come. And at budgets the time have of the been- reply. He will come. Budgets have been merged. No, don't worry. Sir, the two budgets have been merged. No. So either the finance minister or the railway minister. No, हो Three जाएगा. cabinet ministers. कैसे हो जाएगा? No, there गाड़ी are कैसे चलेगा? there are 2 or 3 cabinet ministers here already. ऐसे Why do you गाड़ी worry? नहीं चलेगा? No, please. You are minister, you know it. When you are minister also, I was in the chair, I know what you did. Now you are saying all this. Because you are always arguing about joint responsibility. And now there are 3 ministers. There is a subject. you are the subject. If we have to say what we said from there, then they should be saying what they said from here. It applies to All right. When you change your role, you will have to change your action also, no doubt about it. I agree with you. When you are here, you have to act as opposition. When you are there, you have to act as government. Okay, Budania ji. Chalo, come. उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे पुनः रेल मंत्रालय की डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बोलने का समय दिया है। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार एक नया इतिहास बनाना चाहती है। पहले जो है नीति आयोग का, इसका आयोजन आयोग का नाम बदल दिया, नीति आयोग बना दिया। आपने जो है जितनी भी योजनाएं थी उनका नाम बदल करके आपने उन्हें लागू कर दिया। आपने जो है रेल बजट को आपने समाप्त करके जो है वो आम बजट में शामिल कर दिया। आप एक इतिहास बना रहे हैं, कोई बात नहीं, हमें ऐतराज नहीं, आप बनाइए। उपाध्यक्ष जी, सभापति जी, हमारा जो रेल है, राज्य मंत्री बैठे हैं, ये रेल दुनिया का सबसे बड़ा उपक्रम है जिसमें 13 लाख से अधिक कर्मचारी हैं, जिसमें 66,000 किलोमीटर से ज्यादा हमारा नेटवर्क है, जिसमें
12,000 से अधिक रेलगाड़ियां चलती हैं और करोड़ों लोग इसमें यात्रा करते हैं। महोदय, मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है बताते हुए कि 1950 के बाद ये पहली बार हुआ है कि हमारे माल में और यात्रा में भारी गिरावट आई है। और आज जो ये गिरावट इस स्तर पर पहुंच गई, सिर्फ 10% हमारी रह गई है। ये क्यों रह गई? क्योंकि रेल में हमारा विश्वास, लोगों का विश्वास समाप्त होता जा रहा है। लोग रेलवे से सफर नहीं करके, यात्रा नहीं करके आज जो है या तो अपने साधन से यात्रा करते हैं, या बसों में करते हैं, वोल्वो में करते हैं, या फिर जो है हवाई यात्रा करते हैं। रेल यात्रा करना पसंद कम करते हैं। इसका कारण क्या है? महोदय, जो आज हमारे देश के अंदर जिस प्रकार के रेल दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, वो सबसे बड़ा कारण है। आज रेल दुर्घटनाओं को रोकना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। महोदय, मैं बजट ये पढ़ रहा था और तो मुझे लगा कि इसमें आपने कहा कि हम 2, 3, 4 चीजों पे विशेष ध्यान देने वाले हैं। रेलवे की सुरक्षा पर, आपके पैसेंजर सेफ्टी पर, सुरक्षा पर, वर्क डेवलपमेंट पर और स्वच्छता पर। ये कुछ बातें आपने बताई हैं कि हम लोग इसके ऊपर विशेष ध्यान देने वाले हैं। और आपने ये भी चिंता प्रकट की है कि दुर्घटनाएं तो बढ़ रही हैं, लेकिन दुर्घटना बढ़ने पर आपने कोष भी स्थापित किया है। अच्छी बात है कि आपने कोष स्थापित किया है, आपकी चिंताएं हैं। लेकिन क्या मैं मंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ कोष स्थापित करने से हम क्या भारत देश की जनता का मन जीत लेंगे? हम उनके मन नहीं जीत सकते। उनमें विश्वास पैदा करना पड़ेगा, उनमें विश्वास पैदा करना पड़ेगा, तब जाकर के हम जो है आज ये सुरक्षा, संरक्षा और ये जो है पैसेंजर सेफ्टी हम कर सकेंगे। आज जो है मैं देख रहा था कि अप्रैल से दिसंबर 2016 के मैं आंकड़े देख रहा था। अप्रैल दिसंबर 2016 से यदि हम पिछले साल का अप्रैल दिसंबर 2015 तक देखते हैं तो माल में और रेल भाड़े में भारी गिरावट आई है। और ये गिरावट जो है ये 13.5% तक पहुंच गई है, 13.5% तक। और 2016 की अवधि में अप्रैल दिसंबर 2016 में माल और यात्रा परिवहन के साथ साथ राजस्व में भी नेगेटिव ग्रोथ हुआ है। ऐसा पहले भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये जो आज जो हो रहा है, महोदय, आपने जो है इस बजट के अंदर बहुत बढ़ चढ़ के बातें कही हैं। वित्त मंत्री जी ने बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि हम 1,31,000 करोड़ रुपए जो है रेलवे को दे रहे हैं। ठीक, अच्छी बात है, आपने 10 बढ़ा के दिया है। सरकार ने वो भी चिंता व्यक्त की है कि हम जो है सुरक्षा पर, इन सब पर ध्यान रखने वाले हैं। अच्छी बात है। आपने कहा कि हम ई टिकटिंग पर सरचार्ज खत्म कर देंगे, एसएमएस के ऊपर कोच साफ हो जाएगा। क्या यही अच्छे दिन है? मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि यही अच्छे दिन है? क्या ये एसएमएस करने से कोच साफ हो जाएगा? क्या आप जो है जो बातें जो आपने कही है, क्या ये सारी जो अच्छे दिन लाने की बात है? नहीं। आज जो है, हाँ ठीक है, आपने जो है आपने नई बात क्या कही इस बजट के अंदर? नई बात कुछ कही नहीं। आपने कहा कि जो सुरक्षा कोष हम बनाएंगे उसके अंदर जो है हम लोग जो है एक्सीलेटर बनाएंगे, हम जो है एक्सीलेटर बनाएंगे। कोई नई बात नहीं है। आपने घोषणाएं की है कि हम 300 बनाएंगे, लेकिन आपके सरकार को 3 साल हो गए। आपने पहले भी घोषणाएं की हैं, कितने बनाए? बड़े बड़े स्टेशनों पर देखते हैं वहां कोई एक्सीलेटर नहीं है। बड़े बुजुर्ग लोग हैं, हमारे दिव्यांग अपंग लोग हैं, उनके हालात क्या है, कल्पना से बाहर की बात है। ऐसे ऐसे वृद्ध लोग जिनके घुटनों में दर्द है, उनके वो चल नहीं सकते, 10-10 कदम बैठ के चलते हैं। लेकिन
इस ओर आपका कोई विशेष ध्यान मुझे लगता नहीं है। महोदय, आज मैं ये बात कहना चाहता हूं, ठीक है, आपने जो है सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए आपने जो है कहा कि हम मानव रहित जो है 2020 तक कर देंगे। ममता जी का भाषण भी मैंने सुना था, ममता जी ने भी यही कहा कि हम 2020 तक जो है मानव रहित जो है क्रॉसिंग सारे खत्म कर देंगे। 3 साल से आप कह रहे हैं कि हम सब खत्म कर देंगे, लेकिन इन 3 साल में कितना जो है आपने जो मानव रहित रेल क्रॉसिंग बनाए हैं, ये तो आपको देश को बताना चाहिए। सिर्फ घोषणाएं करने से ये काम चलने वाला नहीं है। महोदय, आपने कई बातें बताई हैं इसके अंदर कि हम जो है इस साल के जो है 3500 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाएंगे। आपने अमान परिवर्तन की बात की कि 900 किलोमीटर का अमान परिवर्तन करेंगे। 1800 किलोमीटर का आपने जो है दोहरीकरण की बात कही है। आपने जो है विद्युतीकरण की बात कही है कि हम 400 किलोमीटर का करेंगे। ये तो चलता एक प्रोसेस है। हर रेल बजट में ये सब बात कही जाती है, ये सारी बातें जो है दोहराई जाती हैं, लेकिन जमीन पर वास्तविकताएं क्या है ये तो हमको देखना पड़ेगा। वास्तविकताएं मुझे कम नजर आती हैं। मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी से कि क्या जो आपने टारगेट दिया है क्या वास्तव में आप इस वर्ष में पूरा कर लेंगे, ये मैं जानना चाहता हूं। महोदय, मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि अभी से बजट के अंदर कोई नई रेलगाड़ी की घोषणा नहीं की गई है, ना कोई अमान परिवर्तन की कोई घोषणा की गई है। कहा गया है कि हम जो है कुछ स्थलों, पर्यटक स्थलों पे या जो धार्मिक स्थलों पे जो है हम कुछ नई गाड़ियां चलाने जा रहे हैं। महोदय, मैं सेंट्रल हॉल में पिछले जब से रेल बजट पेश हुआ है, आम बजट पेश हुआ है, तब से मैं सेंट्रल हॉल में बातें सुनता हूं। हमारे जो साथी लोग हैं जो लोकसभा से भी चुन के आए हैं, वो बड़ी चिंता में है, वो बड़ी चिंता प्रकट करते हैं और ये बात सही है। मैं भी लोकसभा का मेंबर 3 बार रहा हूं। जब बजट आता था रेल का तो हम लोग रेल भवन जाते थे, वहां जाकर के हमारे क्षेत्र की समस्याओं को बताते थे। नई रेलगाड़ी, अमान परिवर्तन, दोहरीकरण, स्टॉपेज, जो है रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट के ऊपर छोटी छोटी बातें जो है बहुत मायना रखती है, वो बातें हम जाकर के रेल मंत्री को बताते थे। वो बात सुनते थे और हमारी बात को जो है वो बजट के अंदर रखते थे और हम जाकर के बड़ा सीना फ्लाई के लोगों के बीच में कहते थे कि आपकी मांग थी, हमने जो है रेल मंत्री से मिलकर के जो है बजट के अंदर पेश करवा दी। लेकिन अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब माननीय मंत्री, वित्त मंत्री जी को तो इतना समय है नहीं कि उनके सामने सारी बातें रखेंगे। रेलवे मंत्री जी के पास कोई अधिकार है नहीं जो ये सब कुछ कर सकेंगे। 1-2 बातें और कही गई हैं। जो सबसे मुख्य बात ये कही गई है कि हम लोग जो है सार्वजनिक जो हमारे उपक्रम है उनको हम सूचीबद्ध कर रहे हैं। आपके जो है, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने जो सूचीबद्ध करने की बात कही है, क्या इसका रेलवे बोर्ड से कोई विचार विमर्श हुआ है या बिना विचार विमर्श किए ही आपने जो है ये घोषणा कर दी बजट के अंदर? आज जो है मैं ये कहना चाहता हूं कि रेलवे बोर्ड जो है हमारा सर्वोच्च प्रबंधन निकाय है और इसको विश्वास में लिए बिना आज जो है रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम, रेल वित्त निगम, इरकॉन इंटरनेशनल, इन आदि को सब जो आनंद फानंद में जो आपने सूचीबद्ध कर दिया, आप कीजिए, लेकिन कम से कम रेलवे बोर्ड को तो विश्वास में लेना चाहिए था। आज सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो है सब अपने आप ही निर्णय लिए जा रहे हैं। जहां रेलवे बोर्ड एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण संस्था होती थी, आज सारे उनको दरकिनार किया जा रहा है। ये बात तो मुझे जचती नहीं कि इस प्रकार से आपका कोई इतनी बड़ी संस्था को कमजोर करना चाहिए। मुझे पिछले दिनों में कुछ अखबारों में पढ़ रहा था कि वो जो है कि रेलवे के अंदर जो है एक मेगा होल्डिंग कंपनी बनाने की योजना है। ये मेगा होल्डिंग कंपनी जो 13 जो हमारी जो पीएसयूज हैं रेलवे की, अब चाहे कंटेनर कॉर्पोरेशन इंडिया, इरकॉन, आईआरसीटीसी, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन, बंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन, रेल विकास निगम, रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, RITES, क्रेडिट फ्रंट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन, बर्न
स्टैंड कंपनी, भारतीय वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी, कोलकाता मेट्रो कॉरपोरेशन आदि जो है, ये सारी चीजें जो 13 जो हमारे जो PSUs हैं रेलवे के, उनको एक जो होल्डिंग कंपनी बनाने की बात थी, ताकि ये, तो मैं अब ये जानना चाहता हूं कि क्या ये होल्डिंग कंपनी अभी भी बनाने की कोई योजना है या ये जो है इस प्रकार की कोई योजना नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं राजस्थान से चुनकर आया हूं। अब मैं राजस्थान के बारे में कुछ बातें जो है रखना चाहता हूं। हमारे चूरू से जयपुर जो है अमानपुर का काम लंबे समय से चल रहा है। सभापति जी, चूरू जिला एक जिला मुख्यालय और वो सालों से जो है रेलवे से कटा हुआ है। आप मुझे बताइए कि राजधानी में जाने के लिए लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। अभी जो है बताया गया है कि हम जो है चूरू से सीकर के बीच में गाड़ी चलाएंगे, फिर सीकर में आगे रुक जाएंगे। तो आज जो है ये चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, ये जो हमारे जो राजधानी से कटे हुए हैं, तो मैं ये मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या आप इन क्षेत्र के लोगों को राजधानी से कब तक जोड़ देंगे? क्या आपकी प्लान है कि नहीं है, या जो है जिस प्रकार से चल रहा है धीरे काम उसी प्रकार से आप चल रहे हैं, या तेजी से काम करने की आपकी कोई योजना है? महोदय, मुझे अभी तो शुरू ही किया है मैंने। नहीं, शुरू तो किया पर खत्म भी करना पड़ेगा। हाँ, कर रहा हूं। आज जो है एक महत्वपूर्ण जो है हमारी एक रेल लाइन स्वीकृत हुई, जो हमारी राजस्थान को और मध्य प्रदेश के ट्राइबल एरिया को जोड़ने की थी। जो डूंगरपुर से रतलाम रेल लाइन थी, इसका जो है यूपीए के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उसका शिलान्यास किया। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस लाइन का काम प्रारंभ नहीं हुआ। मैंने जानना चाहा पिछले बजट के अंदर, पिछली बार जब मैं बोला था तो मैंने ये प्रश्न पूछा था कि आपके मन में क्या है, क्या आपका ये मन में तो नहीं है कि आप जो है इन दो ट्राइबल जो प्रदेशों को नहीं जोड़ने की आपकी कोई स्कीम नहीं आ गई है? तो मुझे रेलवे बोर्ड से एक दिन फोन आया कि आपने ये बात जो है उठाई थी। अभी आया मेरे पास फोन, उनको लगा शायद मैं दोबारा उठाने वाला हूं, तो मुझे बताया गया कि ये PPP मॉडल में था और राजस्थान सरकार ने अपना हिस्सा नहीं दिया। सभापति महोदय, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन इतनी बड़ी मुख्य परियोजनाएं तो बदलनी नहीं चाहिए। यदि इस सरकार का बदलने का ही काम है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। महोदय, इसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मीटर गेज थी राजस्थान के अंदर, तब एक बहुत बड़ी ट्रेन चलती थी जोधपुर से दिल्ली। वो ट्रेन मीटर गेज जो है ब्रॉड गेज होने के बाद में वो ट्रेन बंद हो गई। उसके बाद में उसको मात्र सप्ताह में 2 दिन चलाया जाता है। मेरा ये निवेदन है कि हमारा एरिया जो जोधपुर से जुड़ा हुआ है, हाई कोर्ट जोधपुर से जुड़ा हुआ है, इसलिए वहां पर जो है प्रतिदिन गाड़ी चलनी चाहिए ताकि लोगों को इसका लाभ हो सके। महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर से दिल्ली तक सुबह एक गाड़ी यहां से चलती है, एक रात को आधी रात को चलती है, इसके बीच में कोई गाड़ी नहीं चलती है। ये इतना बड़ा क्षेत्र है जो कि पूरे दिन कटा रहता है। मेरा अनुरोध है माननीय मंत्री जी से, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको बीकानेर से दिल्ली तक शताब्दी गाड़ी चलानी चाहिए, जो वहां से सुबह जल्दी प्रारंभ हो और यहां जल्दी पहुंच सके और यहां लोग बाग अपना काम करके वापस जो है शताब्दी पकड़ के वो बीकानेर पहुंच सके। इससे राजस्थान का एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो कवर होगा। उड़ाना जी, समय हो गया आपका पूरा। 2-3 बात मेरे बस में नहीं है। 2-3 दिन बाद अब मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आपके और वक्ता है, उनका समय आप ले रहे हैं। महोदय, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर एक ताल छापर नाम का एक शहर है। ब्लैक बक सेंचुरी। उस ताल छापर एक ऐतिहासिक है, जो काले हिरणों की जो हमारी सेंचुरी है, ब्लैक बक, जो ब्लैक बक बता रहे हैं,
सभापति जी, वहां देश के प्रधानमंत्री भी गए हुए हैं। वहां जाकर के उन्होंने उसका निरीक्षण किया, देखा, उन्होंने कहा कि हमारे देश के अंदर इस प्रकार के, लेकिन आज इतनी तकलीफ के साथ है, कहना पड़ रहा है कि उसका कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई विकास नहीं। हमारे वहां पर्यटक जाते हैं तो ताल छापर रेलवे स्टेशन पर जब उतरते हैं तो देखते हैं कि यहां तो कुछ भी नहीं है। अरे इतनी बड़ी सेंचुरी, आप उस स्टेशन का डेवलपमेंट नहीं करा सकते? अरे कम से कम जो है आप धूप से बचने के लिए आप 3 सेट तो लगवा दीजिए वहां पर, ताकि कम से कम पर्यटकों को ये तो कह सके कि भाई आप ठंड में खड़े हो जाओ। आप जो है वहां पर वेटिंग रूम बनाइए, आप वहां पे अच्छे और काम जो करिए ताकि वहां पर्यटक ज्यादा से ज्यादा आ सके। दुधुआ खारा एक रेलवे स्टेशन है। ये मैं अब जब मीटर दूसरे वक्ता को बुला रहा हूँ। मैं 2 मिनट सर, दुधुआ खारा एक रेलवे स्टेशन है जो मेरा स्वयं का गांव है। मैं ये नहीं कहता कि मान करके आप विषय को छोटा करके पूरा कर दीजिए। मेरा गांव है इसलिए कुछ करिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब मीटर गेज थी तो एक्सप्रेस गाड़ियां वहां रुकती थी, लेकिन जो ही ब्रॉड गेज हुई वहां गाड़ियां खड़ी होना रुकना बंद हो गई। तो महोदय ये बात ठीक नहीं है। मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आप जो है ये जो गाड़ियां जो जहां स्टॉपेज थे वहां पे आप पुनः बुलाना जी हो गया। राम विचार नेताम जी को बुला रहा हूँ। राम विचार नेताम जी, उसके बारे में जो मैं आपको कहना चाहता हूं, इसका सर्वे जो है बार घोषणा होती है, इसको पूरा करिए। महोदय, मैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में नहीं बोलूंगा, नॉर्थ ईस्ट के बारे में नहीं बोलूंगा तो मेरा बोलना अधूरा रह जाएगा। महोदय, मैं पिछले अब हो गया आपका समय। राम विचार नेताम जी, वहां पर जो है आपने ब्रह्मपुत्र अब बोलना शुरू करिए। अब रिकॉर्ड में नहीं जाएगा जी, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा जी। उपसभापति महोदय, जी, उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ, आसंदी का आभारी हूँ कि बुढ़ानिया जी के ट्रेन छूट चुकी है और उसमें हम सवार हो गए। उपसभापति कविता आप मत करिए, कभी कर लेंगे अपन साथ में मिलके। उपसभापति महोदय, कविता बाद में कर लेंगे। बिना इंजन के डब्बा चल रही है। उपसभापति महोदय, भारत के दिलों में दौड़ती है रेल, देश के हर हिस्से को जोड़ती है रेल। उपसभापति धर्म महोदय, जाति पाति जानती नहीं है रेल, छोटे बड़े सभी को मानती है रेल। ये बात रख करके आप आगे बढ़े और इस देश के अंदर आज जो रेलवे के प्रति जो हमारा विश्वास कम हो रहा है, उस विश्वास को आप बना के रखें। आज जो है धन्यवाद। हमारा जो माल जो हमारा सुरक्षित नहीं पहुंचता, उसके बारे में आपको कोई योजनाएं बनानी चाहिए ताकि हमारी ये जो हमारी कमी आ गई है, ठीक है, आपने पूरा कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी नेताम जी, उपसभापति बोलिए नेताम जी। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ये बोलने का समय दिया और जहां तक इस बजट का सवाल है, ये 23 तारीख को ही प्रस्तुत हुआ, लेकिन किन्हीं न किन्हीं कारणों से आज ट्रेन जो है रुकते रुकते आज यहाँ तक पहुँच चुकी है और उसमें हम सवार होकर के आज गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए यहाँ उपस्थित हो गए। उपसभापति महोदय, आदरणीय हमारे रेल विभाग के यशस्वी मंत्री जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया, निश्चित ही स्वागत योग्य है। हम ही नहीं, पूरा देश जो है स्वागत कर रहा है और इसलिए स्वागत कर रहा है कि सभी वर्ग समुदाय, सभी क्षेत्रों का ध्यान रख करके, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात हो, चाहे उत्तर क्षेत्र की बात हो, चाहे दक्षिण राज्य की बात हो, समूचे भारत के जो लोगों की जो कल्पना, सोच
उसके आधार पर लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमारी जो संसाधन है उसका कैसे बेहतर हम प्रयोग कर सकें, निश्चित तौर पे इसके माध्यम से आज यहाँ प्रस्तुत हुआ है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के सोच के आधार पर जिस प्रकार से रेल की रफ्तार चल रही है, रेल में जो आमूलचूल परिवर्तन करने के जो घोषणाएं हो रही, जो काम हो रहे हैं, ये सरकार घोषणा वाली सरकार नहीं, ये सरकार जो है काम करने वाली सरकार है। पहले जिस प्रकार से बजट प्रस्तुत होता था उपसभापति महोदय, तो ऐसा लगता था जैसे कोई वहां बाजार का माहौल है। जब जिस प्रकार से सांसदों का कोलाहल होता था, लोग अपनी अपनी समस्या, अपनी अपनी बात, अपने अपने क्षेत्रों की बातें लेकर के जिस प्रकार से हंगामा होता था, पूरा देश जो है उस तमाशा को देखा करता था। और घोषणा ऐसे होते थे कि जैसे जहां जरूरत नहीं है वहां भी घोषणा होता था, और खास करके घोषणा वहां होता था जहां के अधिकांश जो रेल मंत्री हुआ करते थे, उन क्षेत्रों में उन राज्यों में ही ज्यादातर बजट जो है केंद्रित होता था। उसके विपरीत वर्तमान सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, माननीय सुरेश प्रभु जी जैसे रेल मंत्री बैठ करके, जिन्होंने देश के आवश्यकता को ध्यान में रख करके, लोगों की जो जरूरत है उसको ध्यान में रख करके, उपसभापति महोदय, रेल में बेहतर काम कैसे हो सके, जो पुराने लीक में चल रहे हैं उससे हट करके आज वर्तमान समय में हम क्या इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी का अगर युग है तो उसमें हम उसका अधिकतर बेहतर हम प्रयोग कर सकें, इसको ध्यान में रख करके रेल में जिस प्रकार से एक बहुत बड़ी परिवर्तन करने का जो बेड़ा उठाया है, निश्चित ही पूरा देश की जनता जो है इसे स्वीकार ही नहीं कर रही है, बल्कि गदगद होकर के उसका सम्मान भी कर रही है। और इसलिए ये भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए जो भी योजनाएं यहाँ पे संचालित की हैं, जो योजना ला रही हैं, वो निश्चित ही हम सब के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। उपसभापति महोदय, अब जैसे हम हाई स्पीड ट्रेन की बात हम करें, जिसकी घोषणा हो चुकी है, मेट्रो ट्रेन में जगह जगह जो मेट्रो ट्रेन के जाल बिछाया जा रहा है, बुलेट ट्रेन की अवधारणा को अमली जामा पहनाया जा रहा है, वहीं पर उसमें बहुत तेजी से काम आगे बढ़ाया जा रहा है। उपसभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज रेल मंत्री के जो कार्यालय, रेल मंत्रालय 24 घंटा काम कर रही है, ये भी देश के इतिहास में एक स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। उपसभापति महोदय, मैं सम्मान करता हूं कि जिस प्रकार से रेल मंत्रालय ने जो काम करना शुरू किया, उसमें हम कह सकते हैं कि इन्होंने 4 बातों को खास करके मंत्रालय के जो 4 सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों का ध्यान रख करके विभाग ने काम करना शुरू किया। जैसे हम कह सकते हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण जो काम है सुरक्षा से संबंधित, जो इतनी बड़ी हमारा मंत्रालय है तो इसमें सबसे बड़ा जिम्मेवारी जो है सुरक्षा का होता है। वहीं पर सुविधा के बारे में बात किया गया है, वहीं पर स्वच्छता और विकास के लिए इन बातों को 4 बातों की ओर विशेष ध्यान रखते हुए रेल मंत्रालय ने जिस प्रकार से काम करना शुरू किया गया है, निश्चित तौर पे इससे ये बहुत ही सराहनीय कदम है। उपसभापति महोदय, जो बजट हम अगर देखें कि पिछली बार के जो बजट जो प्रस्तुत हुआ था 16-17 में, वो 16-17 में जो बजट प्रस्तुत हुआ था उससे पिछली बार जो है 1,21,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत हुआ था, उसे इस बार के बजट में 10,000 करोड़ के लगभग का 1,31,000 करोड़ का बजट जो है प्रस्तुत किया गया है। इससे ये दर्शाता है उपसभापति महोदय कि हम आगे इस वर्ष के जो काम करने वाले हैं, कितना हम आगे चल करके इसमें विस्तार, चाहे उससे सुरक्षा के लिए हो, चाहे सुविधा के लिए हो, चाहे स्वच्छता के लिए विशेष कार्यक्रम चला करके और विकास के लिए, इन 4 बातों में ये जो बजट हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें खर्च होने वाले हैं। जहां तक रेल हादसा को रोकने के लिए, इसके लिए अलग से जो कार्पस जो फंड होता था, सुरक्षा निधि जो होती थी, उसमें भी 1 लाख करोड़ का
जो प्रावधान किया गया है, निश्चित ही ये आने वाले समय में जो तत्कालिक जो आवश्यकता होगी, आवश्यक जो कदम उठाने होंगे, इस फंड के माध्यम से ये बेहतर काम हो सकेगा। हम कह सकते हैं उप सभापति महोदय कि आज जो देश भर के जो रेलवे स्टेशन हैं उसमें आज दिखाई दे रहा है कि कितना आज परिवर्तन है। इसमें हम ही नहीं बल्कि इस भाषण के जो प्रारंभ किए हमारे अपोजिशन के जावेद भाई ने भी अपने भाषण में दलगत भावना से ऊपर उठ करके उन्होंने एक बहुत ही सम्मानजनक तरीके से अपने वक्तव्य को दिया और उन्होंने सराहना किया कि वास्तव में रेल मंत्रालय आज इतना अच्छा काम कर रहा है कि उसका जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और यही कारण है कि देश भर के लगभग 300 स्टेशनों को मॉडल स्टेशन के रूप में वहां पर सुविधा की दृष्टि से एक्सीलेटर और लिफ्ट लगाने का जो कार्यक्रम है, ये भी बहुत एक सराहनीय कदम है। वहीं पर देश के लगभग 2000 स्टेशनों को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित किए जाने का संकल्प जो लिया है, ये भी एक बहुत बड़ा कदम है, सराहनीय कदम है। उप सभापति महोदय, हम पिछली बार अगर हम देखें तो देश के लिए जो रेलवे में जो डेवलप करना था, नए जो रेलवे लाइन बिछाने थे, उसमें उससे भी वृद्धि करके जहां हम 2800 किलोमीटर के वृद्धि करने का जो 16-17 के जो प्रस्ताव था, इस बार के प्रस्ताव में 17-18 में करीब 3500 किलोमीटर, यहाँ 3500 किलोमीटर यहाँ तक रेल का लाइन बिछाने का बजट में प्रावधान किया गया है। निश्चित ही ये सराहनीय कदम है। वहीं पर हम जो हमारे बोगियों का खास करके जो सवारी डब्बे होते हैं उसमें जिस प्रकार से स्वच्छता को विशेष ध्यान रखा जा रहा है, स्टेशनों में जिस प्रकार से स्वच्छता का काम चलाया जा रहा है, ये भी अपने आप में एक आमूलचूल जो परिवर्तन होना चाहिए वो आज दिखाई दे रहा है। आज हम वहाँ पर बोगियों में भी जहाँ पर हम प्रवेश करते हैं वहाँ पे SMS के माध्यम से भी वहाँ पे माई कोच सुविधा जो लगाया है उसके माध्यम से भी हम अपने वहाँ पर किसी प्रकार के कोई असुविधा हो तो उसे हम फोन करके कॉल करके वहाँ तत्काल जो है सेवा ले सकते हैं। एक और बड़ी जो परिवर्तन इसमें उप सभापति जी जो देखने को मिल रहा है कि जो रेलवे के ई टिकट के माध्यम से जो सर्विस चार्ज नहीं देना होगा, उसके वजह से एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। वहीं पर हम देखते हैं कि देश में जो कैशलेस जो रिजर्वेशन होता था, पहले हम देखें 58% ही इसमें कैशलेस के माध्यम से वहां टिकट बुकिंग होती थी, लेकिन वर्तमान समय में ये बढ़ करके 68% से भी ऊपर हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। ये दर्शाता है कि इसके माध्यम से लोगों कितना इससे फायदा हो रहा है। वहीं पर एक 2020 तक जो ब्रॉड गेज से मानव रहित क्रॉसिंग खत्म करने के जो योजना है, वास्तव में मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी एक क्रांतिकारी इन्होंने घोषणा किया है और एक इस काम को लिया है। सभी ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगाए जाएंगे और पर्यटन और तीर्थ स्थानों के लिए विशेष ट्रेन चलाने के जो विशेष इसमें प्रावधान किया जा रहा है, निश्चित तौर पे मैं इसकी सराहना करता हूं। ये बधाई के पात्र हैं। उप सभापति महोदय, आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके साथ साथ मैं अब छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो एक नवोदित राज्य है और एक कह सकते हैं कि जहां की पॉपुलेशन 32% ट्राइबल और वहां 85 ब्लॉक जो है वो ट्राइबल ब्लॉक है। 146 में 85 जो है ट्राइबल ब्लॉक है। वहां पर आज हमारे छत्तीसगढ़ में रेलवे की जो कनेक्टिविटी है वो कम है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें विशेष ध्यान दें, जिससे कि यहाँ का जो खनिज का भी जो बेहतर एक दोहन भी हो सके, उसका फायदा वहाँ पर मिल सके, वहाँ के वनवासियों को, वहाँ के निवासियों को रेलवे का लाभ मिल सके। इसके लिए महोदय मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें कोरबा से अंबिकापुर जो 54 लाइन है नई लाइन है, इसे स्वीकृत करने की कृपा करेंगे।
अंबिकापुर बरवाडीह जो रेल लाइन है, एक इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि सबको आश्चर्य होगा, सदन में आश्चर्य होगा लोगों को कि सन 1935-36 में ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय में अंग्रेजों के शासन थे। उस समय इसकी कल्पना की गई थी। इसलिए कल्पना किया गया था कि बॉम्बे से कलकत्ता की जो दूरी है, इसमें इस लाइन को बना देने से लगभग जो है 400 किलोमीटर की दूरी कम हो रही। तो ये सिर्फ जो है वहां के लोगों की ही आवश्यकता नहीं, बल्कि ये राष्ट्रीय हित में एक बड़ा फैसला हो सकता है। और इस बारे में लगातार जो है पूर्व की सरकारों में भी कई बार जो है बजट में आया, लेकिन उसे स्वीकृति जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट मिलना चाहिए, जो स्वीकृति मिलना चाहिए, वो वित्त विभाग से क्लियरेंस नहीं हो पाया। मेरा निवेदन ये है कि वर्तमान में पूर्व में यूपीए की भी सरकार रही, उस बजट में भी आया, लेकिन वो फाइनेंस जाते जाते तक वो लटकता रहा। मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा 1941-42 में भी वहां पर वो लाइन का काम शुरू हो गया। आदरणीय जयराम रमेश जी हैं यहाँ पर, आदरणीय आप सबको भी मालूम है कि 1941-42 में भी वो काम शुरू हो गया और झारखंड से आपका बरवाडीह से लेकर के बलरामपुर जिले तक का लाइन का भी काम हो गया। वहां पर ट्रेन का लाइन उस समय स्टेशन भी कई जगह बन गए, वहां लाइन भी बिछाने के पुलिया तक बन गया था। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है कि देश की जो 1946-47 में उस समय जो भी परिस्थितियां रही होंगी, उस समय के बजट में इसे जो है रोक दिया गया और लगातार तब से लेकर के आज तक वो लाइन जो है अभी तक वैसे रहा और सिर्फ जो है 182 किलोमीटर की दूरी, बस इतना ही है। अब इतना महत्वपूर्ण लाइन है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से भी राष्ट्र हित का मामला हो सकता है उप सभापति महोदय। और इसलिए इस लाइन को अगर हम जोड़ते हैं तो जहां हम एक तरह से बॉम्बे और कलकत्ता की दूरी को हम 400 किलोमीटर दूर कर पाएंगे, वहीं पर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित और राष्ट्र हित का भी मामला हो सकता है। और वहीं पर इन क्षेत्रों में खास करके जो झारखंड का हमारा गढ़वा रोड से लेकर के हमारे छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा है, झारखंड का जो पश्चिमी और दक्षिणी जो हमारा झारखंड है, मिनरल से भरा हुआ है और इसलिए इसका एक बेहतर उपयोग हो सकता है उन क्षेत्रों में निवासियों का। उपसभापति महोदय, मैं तो अभी शुरू किया हूं और इसलिए मैं प्रथम वक्ता हूं, मैं अपने दल की ओर से मैं प्रथम वक्ता हूं और इसलिए बार बार इधर देखेंगे तो मुझे भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। स्पीड बढ़ाइए ट्रेन की, जिससे कि आप कंक्लूड कर सकें। सभापति महोदय, मेरी चिंता ये है कि आपका भाषण पूरा हो जाना चाहिए, स्पीड बढ़ाइए आप। बहुत अच्छा, स्वागत है, स्वागत है। हाँ, उप सभापति महोदय, मैं खास करके मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा ये जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, यहाँ मैंने निवेदन किया कि अंबिकापुर से बरवाडीह रेल लाइन एक इतनी आवश्यकता, इसके बारे में हमने निवेदन किया। रायपुर आने जाने के लिए अंबिकापुर सरगुजा से, जिसमें कि रायगढ़ हमारा जसपुर जिला पड़ता है, कोरिया जिला पड़ता है, सरगुजा जिला पड़ता है, बलरामपुर जिला पड़ता है, झारखंड का भूभाग है। इन जिले के लोगों को, निवासियों को आने जाने के लिए, सीधे रायपुर पहुंचने के लिए कोई वैसी ट्रेन नहीं है, सिर्फ एक ट्रेन की सुविधा है। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां से अगर एक इंटरसिटी ट्रेन चला दिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक अंबिकापुर जबलपुर ट्रेन जो चल रही है, सप्ताह में 2 दिन चलती है, इसे डेली कर दिया जाए। अंबिकापुर से दिल्ली जाने के लिए यात्रियों के लिए एक जो कनेक्टिविटी है, वहां के लिए एक ट्रेन चलाया जाए। अंबिकापुर स्टेशन को टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाए। दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस में प्रथम श्रेणी कोच का अतिरिक्त कोच लगाया जाए। उसलापुर, बैकुंठपुर, विश्रामपुर, इन स्टेशनों को वहां पर एक आदर्श स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाए। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उपसभापति महोदय, जो रायपुर से आने जाने के लिए आज भी हम लोग दिल्ली से रायपुर हम जाते हैं या रायपुर से दिल्ली आते हैं तो 22 घंटे का समय लगता है। इसको कैसे हम ठीक करेंगे? ये दूर इतना समय लगता है आज के समय में, और इसलिए इसके लिए और भी फास्ट ट्रेन चलाया जाए और जो राजधानी सिर्फ 2 दिन चल रही है उससे प्रतिदिन किया जाए। साथ ही साथ उपसभापति महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है,
एक रायपुर से टिटलागढ़ दोहरी रेल लाइन का काम आज से लेकर के 1930-31 की लाइन है। 1930-31 आजादी के पहले की लाइन, ये लाइन अभी तक चल रहा है। उप सभापति महोदय, जो दक्षिण भारत, पूर्वी समुद्री क्षेत्र एवं मध्यम क्षेत्र, उत्तर भारत को जोड़ने में रायपुर विजयनगरम रेल लाइन की जीवंत भूमिका है। ये लाइन इतनी जरूरी है कि आज भी छत्तीसगढ़ राज्य खनिज उत्पादन में अग्रणी है। जहां की कोयला 22.6%, लौह अयस्क 19.8% एवं सीमेंट 36.5% उत्पादन होता है। ऐसे देश को एक समृद्धशाली बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ का जो महती भूमिका है, उसे देखते हुए यहां पर इस लाइन को जो है प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाए। आप सबको मालूम होगा उपसभापति महोदय कि सिर्फ जो है 42 किलोमीटर के कार्य जो है पूर्ण हुआ है। अभी बाकी काम जो है, अभी दोहरीकरण का काम बाकी है। एक दल्ली राजहरा राव घाट की बहुत ही प्रतीक्षित योजना थी। इसे हमारी सरकार ने स्वीकृति दे करके काम शुरू कर दिया, काम चालू है। सिर्फ जो है कुछ काम बाकी है। मेरा निवेदन है इस काम में और गति लाया जाए, जिससे कि ये काम जो है वहां के पूर्ण होने से उस क्षेत्र की जनता को और मिनरल्स के लिए और बीएसपी के लिए जो जिसे ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है, वो अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। एक और निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय, आपके क्षेत्र का भी कोई बात हो तो मैं रख दूं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं उपसभापति महोदय कि खास करके आपके यहाँ उज्जैन के लिए और कोई फास्ट ट्रेन होना चाहिए कि नहीं। आप भी कई बार वहां से बोलते हैं, मैं भी समर्थन कर रहा हूं, क्योंकि वो हमारा धार्मिक नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है, और इसलिए सुविधा को वहां और विस्तार होना चाहिए। साथ ही साथ ये निवेदन करना चाहूंगा कि फैजाबाद में एक गुड शेड है, जिसको आसपास शिफ्ट करने के लिए आम जनता, जनप्रतिनिधियों एवं माननीय सांसदों के द्वारा लगातार मांग किया जाता रहा है, लेकिन अभी तक क्या कारण है कि इसे अभी तक अलग नहीं किया गया। क्योंकि इसके कारण जो है शहर में न केवल ट्रैफिक की व्यवस्था खराब हो रही है, अपितु ट्रकों के आवागमन और लोगों के आने जाने में भी बहुत असुविधा हो रही है। और इसलिए निवेदन है कि इसे जिससे जनता रेलवे वक्ता और हैं आपके। इस संदर्भ में उत्तर रेलवे तथा गुड शेड को सलारपुर में शिफ्ट करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसको स्वीकृत करना अति आवश्यक है। कृपा करके इसे स्वीकृत करने धन्यवाद कृपा करेंगे। उपसभापति महोदय, आपने मेरी बात भी कही, इसके लिए भी धन्यवाद, और हमारी बात को गंभीरता से सुना, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और अपने जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका मैं ससम्मान जो है समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। श्रीमती विजिला सत्यनाथन, नॉट प्रेजेंट। श्री डी बंदोपाध्याय, 5 मिनट का समय है। मैं आदमी तो अच्छा हूं, पर मेरी बाध्यताएं हैं। Keep both this responsibility in mind in all their initiatives and activities. For the first time, in India, the general and railway budgets have been combined. This merger has given an opportunity to the government not to reveal but to hide anything that is inconvenient to it if they so desire. I would like to highlight that since our independence, capital expenditure on railways has always been borne by the central government. In last 2 years, this pattern has changed, and the state governments have been asked to bear costs through special purpose vehicles. The central government has pushed some projects
with some state governments that require financial and other resource contribution by the state governments. While this may work with a few affluent state governments, this model is not viable for those states that are debt-stressed or cash-strapped. This would not work at all in all our northeastern seven sister states. The gross traffic receipts, GTR, for 2017-18 has been projected as 1.88 lakh. In 16-17, the GTR was projected as 1.84 lakh crore. But the revised estimate of the budget is admitted to shortfall of 12,664. It is obvious that even this year's projection will fall short of the fall short. The government is not being quite open regarding the state of railway finances. For the first time from 1978, there is a drop in the freight earnings compared to the previous year. Competition from the road transport and in few cases from the river transport might be some factor, but this could probably also, there could be other reasons also. This could be also because the internal problems of the railways. The railways are reaching out well in popular and social media like Facebook and Twitter. I am not against it. However, the number of unreserved passengers being around 12 million out of a total number of 13 million, how is the government engaging with these 12 million passengers? Will they fend for themselves? This year, with the merger of the railway budget with the general budget, the largest social obligation of the railways has been completely sidetracked. The generosity and the sense of mission have gone. The Indian Railways had been a big supporter of Indian sports. In 1916, 1/3 of the Indian contingent to the Rio Olympic were from the railways, Indian Railways. How have they been rewarded? Is it by changing rules and making it difficult for sports persons to get proper training? In earlier years, 330-day special casual leave was to be given. Now, only a certain category of sports persons, including Olympics and Commonwealth Games medal winners, will have the privilege. Previously, 120-day special casual leave used to be granted to players without any medal, but with the potential to win one. This has been cut to 90 days. Even the provision of half-day leave has been discontinued. It is being allowed only in exceptional cases. This will mean this will come in the way of regular training. One of my colleagues has already written to the Honorable Minister regarding this, and I hope he takes proper and quick action. Another aspect of the social responsibility is energy conservation. There is a promise by the railway to fit all coaches of all trains of the Indian Railways with bio-toilets by 2019. The government has given it up. In reply to a question in Rajya Sabha some time ago, it said about 800 trains had either some coaches or some coaches fitted with bio-toilets. The reply, prima facie, is delightfully vague. I would like to ask the Honourable Minister, what is the projected time frame for fitting all coaches with bio-toilets? No doubt, the railway safety emphasized by the budget with the announcement of the Rashtriya Rail Sanraksha Kosh is very, very good. However, on November 216, 1.25 lakh non-gazetted posts related to safety were lying vacant. With all these vacancies, can the appropriate level of safety
be achieved. In October 2016, there were 410 pending compensation claims relating to 10 accidents. Have this been settled? I am not against bullet trains. It is an issue of priority. Instead of bullet trains, in the case of fund shortage, does not India need more safety officials and safety mechanisms? Towards the end, before I end, I will specially mention about my state of West Bengal. In 2017-18, outlay for West Bengal is 6,636 crore as compared to 3,820 crore previous year. This is highly welcome. Projects worth 40,000 crores, including the Calcutta Metro Railways, are going on in West Bengal. However, central government has allotted only 15% to West Bengal in the demand for grants. This will slow down the execution of many important projects in West Bengal. I am happy to point out that the Calcutta Metro Railway is performing fairly well. Budget gross turnover receipt for 16-17 were 242 crore. Revised estimate goes up to 256 crore. The Calcutta Metro, the Northeastern Frontier Railway, the East Coast Railway are the only zonal railways that have posted better figures than the initial budgetary projections. These railways Please conclude. Please conclude. Your time is over and only 3 minutes left for another. 2-3 minutes. Yes. If you Only like, 3 allow. minutes left for other. No, as you like. I don't have anybody from my party. Yes, I'm there alone. is two names. Derek I'm is the there. lone fellow Derek is party. there. Anyway, I will avoid by your order, sir. Okay. Let me continue. I was almost completing. In the both houses of the parliament, our MPs have made some specific demands to the Honorable Railway Minister. I am not repeating them. I would only urge the Honorable Minister to look into these cases and to dispose them of quickly. The railway budget has been swallowed up into the general budget. Thank you. I urge the Minister to ensure that social responsibility of the railway does not get Shri swallowed Ramnath up Thakur. in the name of economic viability. One of the main factors of our unity of our country is the extensive railway coverage. Nothing should be done to weaken this factor. Thank you very much, sir. सभापति महोदय, आपके प्रति और अपने दल के नेता श्री नीतीश कुमार जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। रेल बजट पर मुझे बोलने का समय दिया। रेल 1853 में जो कोई इसकी स्थापना करने के लिए सोचे थे, बंबई से थाने में सिर्फ 34 किलोमीटर रेल बनाने का काम हुआ था। रेल दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम को जोड़ता है। ये रेल गरीबों का, शोषितों का, पीड़ितों का, दलितों का एक सहारा है। रेल इससे आसानी से लोग जाता है, आता है, लेकिन 94 वर्ष के बाद रेलवे का जो बजट होता था 94 वर्ष अकेला, तो लोग देखते थे कि रेलवे का बजट सुना जा सकता है। अपनी समस्याओं से रेल मंत्री को अवगत कराया जा सकता है। रेल मंत्री उस पर ध्यान देते हैं और उस पर कार्रवाई भी होती थी। लेकिन क्या कारण है कि 94 वर्ष के बाद रेल बजट आम बजट में परिवर्तित हो गया। हमको सोचना होगा कि 16 लाख रेलवे के कर्मचारी हैं और
रेल का जो बजट है 54%, 54% सिर्फ वेतन में चला जाता है, टीए और डीए में चला जाता है। सिर्फ 46% बजट का हिस्सा रेल के विकास के लिए बच जाता है। हमको 94 बरस से देखना होगा कि हम आज कहां पहुंचे, किस कारण से पहुंचे। 2014 में लोकसभा के चुनाव में बड़े आशा और विश्वास के साथ नौजवानों ने, हिंदुस्तान के नौजवानों ने श्री नरेंद्र मोदी जी को वोट देने का काम किया था और सत्ता में लाने का काम किया था कि हमारी बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी और रेलवे का जो रिक्त पद है उसे भरे जाने का कोशिश होगी। लेकिन 3 वर्षों में एक भी नौजवान को रेलवे में भर्ती नहीं ली गई, इंटरव्यू में उसे सम्मिलित नहीं किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि जो नौजवान रेलवे में इंटरव्यू के समय आने और जाने में जो उनकी कठिनाइयां होती हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलता है, रेल मंत्री से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस पर निगरानी करने का काम करेंगे और उस पर ध्यान देने का काम करेंगे। हमने देखा है देश के प्रधानमंत्री चुनाव में जितना मेहनत करते हैं, जितना दौड़ते हैं, अगर उसी मेहनत के बदौलत जो ट्रेन की दुर्घटनाएं हो रही हैं, अभी 2-3 महीने में जो जिस रफ्तार से दुर्घटनाएं हो रही हैं, करीब 100 दुर्घटनाएं हो गई। अगर रेल मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी मिलकर जिस जोश और खरोश के साथ चुनाव में वो दौड़ते हैं, अगर ध्यान देते कि ट्रेन का दुर्घटना नहीं होगा तो वो दुर्घटना नहीं होती, और हमारा मानव जो है, नौजवान जो है, महिलाएं हैं जो मरी हैं दुर्घटनाओं में, वो नहीं हो पाती। हम चाहते हैं कि इन्होंने बड़े जोर शोर से रेल बजट को विस्तार पूर्वक चलाने का ऐलान किया। क्या ऐलान किया? 94 वर्ष में इतनी तकनीकी बढ़ गए, लेकिन जारे में भी 48 घंटे, 24 घंटे, 30 घंटे ट्रेन लेट होती है। क्यों लेट होती है? इंटरव्यू छूटता है, जो प्रोग्राम बनता है उस मुताबिक वहां लोग पहुंचता नहीं है, पैसेंजर, वो देरी होती है। इस दिशा में हम रेल मंत्री से निवेदन करना चाहेंगे, उन्होंने कौन सा कुहासा को काटने के लिए कौन सा तकनीक अपनाने का काम किया। हम कुछ सुझाव के साथ यह कहना चाहते हैं कि एक कमेटी थी, एक मॉडल था, रेल मंत्री जब कहीं दुर्घटना होती थी तो इस्तीफा देते थे। उस समय कमेटी, लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया और एक कमेटी बनी HR खन्ना के अध्यक्षता में। अगर कहीं दुर्घटना होगी तो 17 जोन बने हैं, 17 रेलवे के 17 जोन बने हैं। अगर दुर्घटना होगी तो रेलवे बोर्ड का चेयरमैन, रेलवे बोर्ड का मेंबर, रेलवे बोर्ड के पदाधिकारी और रेलवे के पदाधिकारी दंडित होंगे। उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। हम निवेदन करना चाहते हैं रेल मंत्री से कि पुनः इसे रेल बजट को अलग करवाने का काम करें और दुर्घटना के बारे में HR खन्ना की जो रिपोर्ट है उसको अमल करने का काम करेंगे। हम निवेदन करना चाहते हैं रेल मंत्री जी से और रेल विभाग से 6066 एकड़ रेलवे लाइन के दोनों तरफ
जमीन बची हुई है, उस जमीन का उपयोग रेल बजट घाटे में चल रहा है, उसको पूरा करने के लिए रेल लाइन के दोनों तरफ पहले नीलाम होता था खेती करने के लिए या अन्य कामों के लिए। रेलवे स्टेशन के नजदीक जो जमीन पड़े हुए हैं, There is one more speaker. हम शुरू किए हैं। There is one more और एक हम तो अभी शुरू किए हैं। आपका पूरा टाइम हम तो शुरू ही किए आप हैं। सुनिए, आपका पूरा टाइम नौ मिनट, सुनिए 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 जी जी, आपका पूरा टाइम 9 मिनट पार्टी का, 2 स्पीकर से अभी 7 मिनट खत्म हो गया, मैं क्या करूं? आपका नाम काट करेगा? एग्रीड? योर नेम विल बी रिमूव्ड देन। हम 5 मिनट में हम खत्म करते हैं। अरे हम कहना चाहते हैं कि जो जमीन बची हुई है, जो जमीन बची हुई है 6,66,000, रेल विभाग उस जमीन का उपयोग करे। सब ठीक है, लेकिन 9 मिनट के लिए 2 नाम दिया है, मैं क्या करूं? 9 मिनट के लिए 2 नाम दिया, दूसरा नाम है मिसेस श्रीमती परवीन। आपका टाइम नहीं है, ओके ले लो, ठीक है, आपका नाम काट करते हैं। हम निवेदन करना चाहते हैं, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि रेल समस्तीपुर जिला रेलवे जंक्शन है। रेलवे जंक्शन 1977 में वहां से डायरेक्ट ट्रेन चलती थी, लेकिन उसके बाद बंद हो गए। हम कई बार पत्र रेल मंत्री जी को दिया, आग्रह किया, निवेदन किया, प्रार्थना किया कि वहां से एक डायरेक्ट नई दिल्ली के लिए, मद्रास के लिए ट्रेन चलनी चाहिए। हम निवेदन करना चाहते हैं कि उस पर वो विचार करेंगे और समस्तीपुर से डायरेक्ट दिल्ली के लिए ट्रेन चलाने का काम करेंगे। हम निवेदन करना चाहते हैं कि रेलवे में जो पुराने पुल हैं, पुराने इमारत हैं, रेलवे के जो ध्वस्त हो रहे हैं, उन पुलों की मरम्मती होनी चाहिए, उन पुलों की मरम्मती होनी चाहिए, नए भवन बनने चाहिए। दोहरीकरण के लिए हमने कई बार निवेदन किया है पत्र के द्वारा और ऐसे मिल करके भी, लेकिन दोहरीकरण अभी तक हाजीपुर से शाहपुर पटोरी होते हुए बरौनी तक नहीं बनी है, और समस्तीपुर से दरभंगा के लिए नियत समय में जो ट्रेन दोहरीकरण बनना चाहिए, रेल बनना चाहिए, वो नहीं बन पाया है, पुल नहीं बन पाया है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं रेल मंत्री जी से कि दोहरीकरण के लिए जहां से ट्रेन नहीं चली है, वहां से ट्रेन चलाने के लिए छात्रों को इंटरव्यू में नियत आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए, और जो ट्रेन का डब्बा जो भरा रहता है होली के समय में, दशहरा के समय में, छठ के समय में, दिवाली के समय में, ईद के समय में, बकरीद के समय में, उस पर डब्बे को बढ़ोतरी होनी चाहिए, ट्रेन की रफ्तार होनी चाहिए, ट्रेन अच्छी चलनी चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि है पेट जहां खाली नरका, है पेट जहां खाली नरका, उस घर में दीप जलेगा क्या? जब घास न कोई देता है तो बूढ़ा बैल चलेगा क्या? इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। जय हिंद। धन्यवाद, धन्यवाद। श्री टी.के. रंगराजन। Chairman, outside I wanted to thank Railway Minister. In this past 2 years he has visited thrice to Tamil Nadu, and he has mixed with the people, and he initiated some new projects also. Having said that, the separation of railway budget was done in 1924 after constituting a committee headed by Akroth, a renowned railway economist, with the view to give focused attention on building of railway infrastructure. Whereas now, 10 pages note was sent by Dobrai to merge the railway budget, saying that ministry has been used to popular announcement.
new lines and new trains without adequate focus on developing infrastructure. From the above, it could be seen that the reason for separation and merger are the same. There is no difference. In fact, the merger will see the railway losing autonomy and there won't be more transparency in its functioning. There won't be any financial relief for the railway. Because of the merger, there is not going to be much financial relief. Since the salary and pension and social obligation to the tune of 35,000 crore will be paid from the railway revenue, unlike other central government employees, salary and pension are paid by the government. The only relief the railway need not pay the dividend of 5,000 crores. The budget says the tariff will be fixed based on its cost. Social obligation and competition. Now a passenger pays 57% of the cost. It is clear indication that there would be a fare hike in future. See, I don't object a fare rise. If the people can afford more than Australia, we are taking daily, though so much of passengers. More than 50 to 60% are unorganized laborers, farmers. They can't afford to pay higher hike in future. Indian Railway Finance Corporation, IRFC, IRCTC, which does ticketing, catering, tourism, and bottled water. Indian Railway Construction Organization, ICON, which are the subsidies of the Indian Railway making huge profit, are listed for disinvestment. Why do you make profit organization for disinvestment? This is not fair and good. I request the Railway Minister to reconsider. A day before the budget, the Finance Minister announced that hospitality business will be outsourced. And the same day, board announced Kalka Simla, Siliguri Darjeeling, and Nilagiri mountain trains will be handed over to the private parties. I think, again, I request the Railway Ministry, government to reconsider that. In the last budget, sir, Minister said that 8.5 lakhs crores are required for modernization, and you are able to raise only 1.5 crore from LIC, and this budget is silent for further fund to be raised. Although it was announced about the safety fund, 1 lakh crore, only seed money will be given by the government. Remaining fund have to be internally generated. The budget promised to eradicate all gates in broad gauge section and adequate funds not allotted. The budget is an anti-worker. Government has announced about the reforms in the labor laws. Let us take the derailment cases. There are phenomenal increase in the derailment. Last year it was 65. This year it is 74. So far, leading to loss of invisible life. The main cause of the arrears of the truck renewal, railways say that 4,500 kilometer truck is to be renewed every year. During the 12th plan, the period from 2012 to 17, 27,000 kilometer has to be quite renewable. But according to CRB report information, the Parliamentary Standing Committee, during this period, we have made only 14,300 kilometer was budgeted and renewed. So, as on date, 12,700 track has to be overdue in renewal. For the next 5 years, another 22,500 kilometers will become due to the renewal to the 25,200 kilometer track renewed during the period of the safety fund. Current cost
the track renewal is 4,000 crore. For 1,500 kilometer is going to be, by 2016-17, the budget estimate, according to the track renewal for 5 years, it's going to be 52,000 crores. Is needed 1 lakh crore a year, 1,000 crore a year. As per the CRB standing committee report, 31,900 crore is needed to complete all sanctioned road safety works, including manning, unmanned level crossing, and replacing RUB to avoid level crossing accident. For creating infrastructure, LHB coaches, according to the Anil Kolkar committee, we need 10,000 crore. For improvement of the signaling, another rupees 20,000 crores is required. Both these estimates are based on Anil Kolkar committee report in 2012. Today, the cost will be double to that amount. Railway budget for 2017-18 was allotted only 1,000 crores for proposed safety fund against 5,000 crores. How they are going to fulfill the commitment is questionable. So more derailment, more accident will be there. That is going to be the certain. Sir, in this scenario, increasing number of accidents cannot be stopped, and therefore loss is invaluable lives will continue. Finally, sir, we must be proud of ICF Integral Coach Factory, Chennai. The productivity of this factory is continuously going up. 2014-15, they have made 1,700 coaches. 2015-16, they have made 2,000 coaches. 2016-17, 2,300 coaches. Sir, the productivity of with the existing strength, no additional recruitment was made in these 3 years. The existing strength, they have increased the productivity. You can see the mettle of ICF employees and officers. Finally, Now conclude. two modern trains set has been given to ICF. It's a very good. I thank the Railway Ministry. I thank you for that. 100% Indian coach course, some technological help will be get from the foreign funds, foreign friends. Sir, I request you to hand over all the modern trains sets to ICF. They are planning to give it to some foreign company. I request them, you can give it to ICF. Okay. ICF can make it. We do not need any foreign help to manufacture the modern trains. Please consider and make this in India by ICF. Thank you very much. Thank you very much. Now, Mr. Rajaram is there? Yes, Sri Rajaram. धन्यवाद उपसभापति महोदय। You call it. मैं बहुजन समाज पार्टी No. की तरफ से रेल मंत्रालय के कार्यक्रम पर चर्चा हेतु खड़ा हुआ हूं। मैं आभारी हूं अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी का, जिन्होंने रेल मंत्रालय के कार्यक्रम पर हमें बोलने का अवसर दिया। महोदय, भारतीय रेल की संप्रभुता एवं आत्मनिर्भरता जो शुरुआती दौर से चली आ रही थी, उसे समाप्त कर दिया गया और रेल बजट को विभिन्न यातायात संसाधनों के एकीकृत सोच के नाम पर आम बजट में समाहित कर दिया गया, जो भारतीय रेल के निजीकरण एवं विदेशी पूंजी निवेश पर द्वारा संचालित सेवाओं के मार्ग को प्रशस्त करता है। महोदय, ये सत्य है कि भारतीय रेल देशवासियों की जीवन रेखा है और हमारे देश के यातायात का महत्वपूर्ण साधन है, जो देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों को जोड़ने में महत्वपूर्ण एवं गतिशील भूमिका अदा करता है। भारतीय रेल विश्व की सबसे बड़ी रेल सेवाओं में एक है, जिसमें करीब 13 लाख से अधिक यहाँ कर्मचारी
66,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क, प्रतिदिन 19,000 से अधिक रेलगाड़ियां, लगभग 3 करोड़ यात्रियों का आवागमन और करीब 27 लाख टन सामान की ढुलाई का लक्ष्य होता है। परंतु सेवा और गुणवत्ता के मामले में रेलवे का रिकॉर्ड ठीक नहीं है। इतने बड़े नेटवर्क जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, जो कार्य अंजाम देना चाहिए था या ईमानदारी से पहल होनी चाहिए थी, वह पिछले 2.5 वर्षों के दौरान किए गए कार्यक्रमों में दिखाई नहीं देती। महोदय, रेलवे में सुरक्षा और संरक्षा ये सबसे बड़ी चुनौती है। यह यात्रियों की सुविधा और जानमाल से संबंधित है। ट्रेन समय से नहीं चल रही, भारतीय रेल घाटे में चल रही और रेलवे भारत सरकार के बजट अनुदान पर निर्भर होकर चलने को मजबूर है। विडंबना यह है, आए दिन रेल हादसे हो रहे हैं। रेल यात्री असुरक्षित यात्रा करके अपनी जान गंवाने पे मजबूर हैं। रेल हादसों के तमाम कारण हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है कि पटरियों का पुराना होना, ट्रेन का पटरी से उतर जाना, सिग्नल में खराबी, कुहरा, मानवीय चूक, उपकरणों की विफलता, आतंकवादी वारदातें, तमाम ये प्रमुख कारण हैं जिसको रोकने के लिए कोई अभी तक सार्थक कदम नहीं उठाया गया। महोदय, जब रेल हादसा होता है तो भारत सरकार के मंत्री लोग या वहां सरकारी अफसर लोग वहां तो पहुंचते हैं, एक टीम बना दी जाती है, कुछ मुआवजे की घोषणा कर दी जाती है। लेकिन रेल हादसा हुआ क्यों, एक कमेटी बना दी जाती है उसकी, लेकिन उसको रोकने के लिए कोई सार्थक पहल नहीं होता। मेरा ये कहना है कि ये रेल मंत्रालय इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई सार्थक पहल करे और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके कांगोत्कर समिति और पित्रोदा समिति की जो सिफारिशें हैं इसको पूर्णतः लागू करे। महोदय, अभी तो 2 मिनट भी नहीं हुआ, बेल बज गई, 5 मिनट मेरा समय है, कोई दूसरा बोलने वाला नहीं है हमारी पार्टी से। आज रेलवे के सामने तमाम चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसे रेलवे को पूरा करना है, परंतु महोदय, रेलवे की प्रतिदिन की जो कमाई है 250 करोड़ रुपए है, लेकिन खर्च कहीं इससे बहुत ज्यादा है। धन की कमी के कारण नए रेल का विस्तार, नए स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाएं यात्रियों को मुहैया नहीं करा पा रही है। रेल डिब्बों में सफाई और खान पान की व्यवस्था भी अच्छी नहीं है। महोदय, ये रेलवे जो बुनियादी रेल जो स्टेशनों पे सुविधाएं हैं वो मुहैया कराने के लिए प्राइवेट ठेकेदारों के माध्यम से रेल के रखरखाव, डब्बों में सफाई का काम, रेलवे स्टेशन पे सफाई का काम, खान पान या पेट्रोल, ये तमाम प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाता है। और इसलिए कराया जाता है, ये कहा जाता है कि ठेकेदारों के माध्यम से या प्राइवेट लोगों से कराए गए कामों की गुणवत्ता अच्छी होगी, समय से काम पूरा होगा और यात्रियों को उसकी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन जस्ट इसका उल्टा होता है। आज आप स्टेशनों पे चले जाएं, हम कहते हैं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, आप दिल्ली, नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर चले जाएं, प्लेटफार्म पे आप 10 मिनट खड़ा नहीं हो सकते। प्राइवेट ठेकेदारों के माध्यम से ये काम को कराया जाता है, पूरा कराया जाता है। आप ट्रेनों में चले जाएं, खान पान की व्यवस्था को देख लें, आए दिन यात्री हंगामा करते हैं, पेपरों में निकलता है खाने की क्वालिटी की स्थिति क्या है। साफ सफाई के नाम पे अगर हम शताब्दी की बात छोड़ दें, राजधानी की छोड़ दें, तमाम ऐसी ट्रेनें हैं जिसमें कोई स्टाफ नहीं होता, साफ सफाई के लिए प्राइवेट ठेकेदारों के माध्यम से होता है, लेकिन उसमें भी कुछ स्टेशन पर चढ़ जाते हैं लोग, सफाई करने के बाद फिर लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, कोई 1 रुपया दे देता है, कोई 2 रुपया देता है, कोई 5 रुपया दे देता है। इस तरह वो रेलवे, तो इस तरह महोदय मैं ये कहना चाहता हूं
कि प्राइवेट सेक्टर में जब आप एक काम देते हैं तो एक तरफ वो व्यवस्था भी अच्छी नहीं हो पा रही है और दूसरी तरफ जो ठेकेदार हैं वो श्रमिकों का बड़े पैमाने पर शोषण करते हैं, उनका शोषण होता है। इस देश में लेबर लॉ बना हुआ है, मिनिमम मजदूरी निश्चित की गई है। महोदय, कभी कभी तो टाइम मिलता है। टाइम इज ओवर, योर टाइम इज ओवर। एक मिनट में आप लेबर लॉ बना हुआ है, मिनिमम वेजेज निश्चित है, ईपीएफ पीपीएफ तो छोड़िए और सुविधाएं तो छोड़िए, लेकिन उसको मिनिमम मजदूरी भी नहीं मिलती है। इसलिए महोदय मैं कहना चाहूंगा, कभी कभार तो हम लोग बोलते हैं, सोचते हैं कि आप जैसे लोगों का संरक्षण मिलेगा, कुछ आज बात रखेंगे, लेकिन महोदय मैं एक आध दो बात रख के, अब तो आपने मुझे रोकी दिया है, तो मैं केवल अपनी एक आध मांगे रख के मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं एक आध दो बातें जानना चाहता हूं। मैंने सारी बातें छोड़ दी कि रेल विभाग में, ये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ग क ख ग की कितनी वैकेंसी खाली है, तथा इसमें एससी और एसटी और ओबीसी के लोगों को कि अभी कितनी वैकेंसी खाली है और इनको भरने के लिए भारत सरकार के पास क्या कोई प्लान है। एक सवाल मेरा। दूसरा सवाल सुरक्षा और संरक्षा से है, इसके लिए कितना धन आवंटित किया गया है और जिससे दुर्घटना को रोकी जाए। और लास्ट में एक कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद में जो आलू का बड़ा गोदाम का केंद्र है, वहां कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वहां भी कोई ट्रेन रोकने की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद महोदय। थैंक यू, थैंक यू। संजय राउत। सर, स्वतंत्र हिंदुस्तान में पहली बार एक संयुक्त बजट पेश हुआ है। इससे पहले रेल बजट पेश होता था तो हम सभी लोग लोकसभा गैलरी में घंटों तक बजट सुना करते थे और बजट सुनने के बाद वहाँ से हमारे क्षेत्र में फ़ोन करते थे, भाई हमारी मांग पूरी हो गई है, रेलवे बजट में हमारा ये काम हो गया है। तो लोग भी बड़े खुश होते थे। पूरे देश में लोग टीवी के सामने बैठकर रेल बजट सुनते थे। लेकिन इस बार वित्त मंत्री जी के 2 घंटे चले भाषण में मुश्किल से 10 मिनट रेलवे को मिले हैं, रेल बजट को मिले हैं। और हम जब यहाँ खड़े होते थे, यहाँ, तो हमारा पहला विधान ये रहता था कि हम रेल बजट के समर्थन में खड़े हैं। अब रेल बजट नहीं है, फिर भी हमेशा रेलवे मंत्रालय हो, रेलवे के कामकाज के बारे में हमारी एक भावना रही है कि देश की रेलवे है, जनता से जुड़ा हुआ मंत्रालय है, उनके साथ हमारी भावना बनी रहनी चाहिए। तो आज हम रेल बजट पे नहीं चर्चा कर रहे, हम रेलवे मंत्रालय की वर्किंग पर चर्चा कर रहे हैं। सर, मैं मानता हूं बजट नहीं है, फिर भी रेलवे में ऐसे कई बातें हैं, कई विजनरी बातें हैं जो 2-3 सालों में सरकार ने शामिल की। कागज पे तो है, लेकिन इस साल नई रेल सेवाओं की घोषणा वाला जो रेल बजट भले जनरल बजट में शामिल कर दिया है, लेकिन इससे रेलवे की खराब फिनेंशियल पोजीशन छिप नहीं सकती। रेलवे मंत्रालय ने रेल बजट की परंपरा को खत्म करके रेलवे की वर्किंग में जो ट्रांसपेरेंसी थी वो खत्म कर दी है। पहले देश और जनता के सामने रेल बजट का छोटा सा मुद्दा भी सामने आता था। इस बार आज 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी देश को पता नहीं है कि रेल मंत्रालय ने क्या किया है और क्या करने जा रही है। सर, इसलिए सवाल उठता है कि क्या अब रेलवे में जो हो रहा है उसे जानने के लिए हमें सीएजी की रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे मंत्रालय की वर्किंग अब उसी से मालूम पड़ रही है। सीएजी रिपोर्ट बताती है सर कि 2010-11 से 2014-15 तक रेलवे के लेखा अधिकारियों की ओर से गंभीर खामियां की गई है। सीएजी ने रेलवे में रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंडिचर के लगभग
64 मामलों का जिक्र किया है, नोटिंग किया है। इनमें 53.57 करोड़ रुपए की राशि शामिल है, जिसे रेलवे ने स्वीकार किया है। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं सर। इसी तरह 11 जोनल रेलवे द्वारा 66 इरेगुलर एडजस्टमेंट के मामले भी सामने आए हैं। इस 1431 करोड़ रुपए की अमाउंट के मामले रेलवे ने भी माने हैं। सर इतना ही नहीं है सर, सीएजी की अगर बात माने तो रेलवे स्टाफ की प्रोडक्टिविटी घटी है। सीएजी ने कहा है कि प्रोडक्टिविटी घटने से कई जोनल रेलवे का खर्च बढ़ा है और उनका इनकम कम हो गया है। इनकम से अधिक एक्सपेंडिचर पिछले 5 सालों में 100% ज्यादा है। सीएजी ने एलआईसी के 1.5 लाख करोड़ रुपए को सही इस्तेमाल करने की नसीहत दी है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि रेलवे मंत्रालय का जो काम है वो हमेशा हमने उस काम के लिए मंत्रालय को, अधिकारियों को शाबाशी भी दी है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं जब सामने आती है तो जनता का पैसा है, देश का पैसा है, कहीं गलत कामों में, गलत मार्गों में तो नहीं जा रहा, उस बारे में आपको देखना पड़ेगा और सदन को बताना पड़ेगा। सर मैं मुंबई से आता हूँ। मुंबई में रहने वाली जो आम आदमी है वो कभी भी रेलवे के काम को या रेलवे मंत्रालय को शाबाशी नहीं देगा। लाखों लोग हैं, हम मानते हैं रेलवे हमारी है, लेकिन आए 2 दिन के बाद किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर 1-2 घंटे 3 घंटे रेलवे लेट हो जाती है, चाहे सेंट्रल रेलवे हो, चाहे वेस्टर्न रेलवे हो, चाहे हार्बर हो, और वहाँ बखेड़ा खड़ा हो जाता है, दंगा होता है, तोड़फोड़ होती है। उसके लिए मैं रेलवे मंत्रालय को जिम्मेदार नहीं मानता हूँ सर। कोई ना कोई सिस्टम में गड़बड़ हो जाती है, फिर सिग्नल की सिस्टम है, रेलवे ट्रैक की सिस्टम है। हम नए रेलवे ट्रैक सालों साल से हम मांग करते हैं कि और ज़्यादा रेलवे ट्रैक की जरूरत, वो नहीं हो रहा है। लेकिन सर हमने एक मांग हमारी हमेशा रही है कि मुंबई सबर्बन डिवीजन बनाने की अलग से, अंडर वन रूफ वन सेंटर में पूरा उपनगरीय रेलवे का संचालन होना जरूरी है, चाहे रेलवे की वर्किंग में वो सुधार हो जाएगा। सर एक महत्वपूर्ण विषय मैं लास्ट बजट के समय रखा था मंत्री जी के सामने। पिछले बजट के दौरान मैंने मुंबई में कोस्टल रिंग रेलवे का प्रस्ताव रखा था और रेलवे मंत्री ने अपने भाषण में उसे पसंद भी किया था, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस दिशा में एक मीटिंग भी नहीं हुई है, न चर्चा हुई है। सर आखिरी मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। एक खबर मैं बार बार पढ़ता हूँ, रेलवे मंत्रालय रोजगार के साथ किस तरह का खिलवाड़ कर रही है। बजट एनेक्सर में रेलवे के मैन पावर को 2015 से 2018 तक 13,30,000 के करीब बताया है, जो 2014 के 15,50,000 की मंजूर क्षमता से 2 लाख से ज़्यादा की कटौती है। क्या सरकार बताएगी कौन सी ट्रांसपेरेंसी के तहत नौकरियों में यह भारी कटौती की गई है? प्रधानमंत्री ने अभी बहुत सी सभाओं में ये बताया था कि रेलवे में 1 लाख भर्तियां हुई, 1 लाख नया रोजगार पैदा हुआ है। अब मैं जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को गलत जानकारी किसी ने दी है या सच क्या है, ये भी सदन को बताना पड़ेगा। रेलवे सबसे बड़ा रोजगार देने वाला विभाग है सर, देश को जोड़ने वाला सबसे बड़ा विभाग है, इसलिए इस मंत्रालय में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं अगर रेलवे का मंत्रालय रेलवे की वर्किंग ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तो देश का ये सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से रेलवे मंत्री जी को ये बताना चाहता हूं कि रेलवे में जो हो रहा है और जो होने जा रहा है, चाहे रेल बजट इस बार नहीं हो अपने हाथ में, तो आप बताइए सदन को आप क्या करने जा रहे हैं और किस तरह से मुंबई जैसे बड़े शहर, चाहे बेंगलोर हो, चेन्नई हो, कलकत्ता हो, बड़े शहरों में रेलवे की यातायात सुधारने के लिए क्या करने जा रहा हूं। धन्यवाद। Thank you. Sir, discussion will continue tomorrow. Now special mention, Mr. Rajiv Gowda, Professor Rajiv Gowda. Absent. Narayan Lal.
से। नाइट्रोजन अन्य प्रदूषणों के कारण निवासियों को हो रही बीमारियों तथा उससे निपटने के लिए राजस्थान सरकार को वित्तीय अनुदान देने की संबंध में मैं लेकर आऊं सर। Thank you. The House stands adjourned till 11 hours tomorrow, Thursday, 30th March 2017.